Good morning, everyone, and welcome to the Uthan session today. So today we're in the second session of the new topic that we started, which is importance of meditation in self-worth. And we have Sangeeta Didi to take this session. Didi, welcome to Uthan. Om Shanti and over to you. Om Shanti. Good morning, all of you. So, all the angels are ready to show them? Yes, yes, all the angels. जो जो अपने आप को एंजल समझते हैं और बिना कहे इशारों से समझने वाले को क्या बोलते हैं? सिर्फ इशारा जिसने समझा है। अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, केवल इशारा समझा है। वंडरफुल, यस। तो इशारों से समझने वाले को देवता कहा जाता है। हम लोग सब हाई टेक है ना, नाउ डेज वी आर वेरी हाई टेक, वी वांट एवरीथिंग, we just we want to we open the Google and we just want to speak and it should happen. इतना मेहनत भी नहीं होना चाहिए कि पूरा टाइप करो and then it should show. Is it true? तो yes, बोलना भी नहीं पड़े और let us be very serious. Let us think this is a school and I have to follow this discipline, though it is not imposed on me. And I will on the video, listen the class, be very sincere for the next 35 minutes. Very good. All those who could be, have a strict eye on yourself. तो बहुत अच्छा. Increasing your self-worth. Actually, when we talk about meditation, so पहला है yourself. Increasing your self-worth. Actually, the whole topic is about this. When we talk about self-worth, so it is nothing but what you feel of yourself at any given point of time. Whatever I feel about myself at any given point of time. क्योंकि बहुत बार हम लोग when we talk about, when we understand ourselves, so it is more about लोग मुझे क्या समझते हैं, है ना? हम ये जनरली हम ये फील करते हैं, what people think about me. But actually it is, so when we talk about the self-worth, so what people, how I feel about myself at any given point of. So suppose, मतलब just think of yourself कि what, how do I base my self-respect on? So how do I base my self-respect on? So is it self-worth on? One is what people think of me. Second, it is what one is what people think of me, and then other is how I look. मैं कैसे दिखती हूँ उससे अपने वर्थ को समझते हैं. And other, so second is first is how I look, second is public opinion, and third is what I possess. अपने वर्थ को, my self worth is based on always these kind of thinking. Is it true? This is what we normally we think about ourselves. Now, जो actually when I talk about myself, so it is nothing but how I am, not what I look. Suppose there is a very
good friend of yours, a friend. So she looks very beautiful, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है. What she is, that is not good. What she is. तो one sec, there is a small problem in the slide, so it is. So वो अच्छा नहीं है कि what she is. तो how much would you like that person? What she is, वो आपको वो ठीक नहीं है. कितना अच्छा लगेगा उसको. तो what I am, when we focus on that part, that is called self-worth. Ab when I say what I am, it is mostly based on what? When I say it is it this physical body? क्योंकि अब जैसे वो फ्रेंड है, बहुत अच्छा है, मे बी शी इज वेरी एजुकेटेड, स्लाइड शो, वेरी एजुकेटेड, वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड, बट अच्छी नहीं है बाय नेचर. आपका दिल करेगा देखने का उसको. तो एक्चुअली व्हाट अ सोल, व्हाट, नॉट व्हाट द पर्सन possesses, what the person is, looks like, but what we are more concerned is what the person is. मतलब जिसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे, how is that soul? So that is what our attraction is for the person. So actually what we like is the soul. So what am I? I am that part we have done a lot. Actually, who am I? Is it this body or is it beyond this body? जो भी मैं हूं इस शरीर से beyond, and that is me, the beautiful soul. So when we focus ourselves on this part, कि I am a powerful soul, I am a beautiful soul, this is what my worth is. So normally, so therefore that is where we can value ourselves. तो जब अपने आप को वैल्यू करते हैं, वैल्यू करना है व्हाट एम आई. तो व्हेन आई वैल्यू माई सेल्फ एज व्हाट एम आई, दिस इज माई रियल वैल्यू. अब जो लोगों ने मुझे कह दिया, व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, सपोज दिस इज व्हाट आई वैल्यू ऑफ, कि व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी. अब वॉट एवर पीपल विल थिंक, दैट विल बी बेस्ड ऑन, that is, जो what people say to me will not decide what I will say to myself, because what their opinion, people's opinion about you is the reflection of their personality, is the reflection of what, it's not about who you are. वो अपनी पर्सनैलिटी को बताते हैं, when whatever people think about you. तो इसलिए they are, and everyone is free to decide whatever they can think about it. और वो जो भी सोचेंगे अपने हिसाब से सोचेंगे. Why should I base my worth as per what they think about me? And therefore क्या होता है, when I base my thing on what people think about me,
then I actually, we are not able to create a good relationship about with ourselves, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया, उस हिसाब से मैं चल रही हूं। तो अब, एंड देयरफॉर आई एम हर्ट। अब क्या हो रहा है नाउ, एंड दैट हर्ट बिकॉज दे सेड दिस टू मी, आई एम हर्ट एंड आई डोंट लव माई सेल्फ, क्योंकि मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कहा, दे से यू आर यूजलेस, आई फील आई एम रियली यूजलेस। So my worth is dependent on what they think about me. And when this kind of feeling जब अगर चल रही हो लाइफ में, I'm जिससे suppose when there is, and therefore there is no love, जहां जिससे आपको प्यार होता है, and suppose someone abuses, you see the father is seeing the child being abused by that person, तुरंत क्या करेगा? वो दौड़ेगा, उसको उठाएगा एंड बहुत प्यार देगा, बिकॉज इट्स माई चाइल्ड। चलो ठीक है, कुछ भी बोले, बट आई लव माई चाइल्ड, सो आई ट्राई टू हील दैट पर्सन, हील द चाइल्ड, ट्राई टू स्टॉप हिम क्राइंग, क्योंकि आई लव। अब किसी ने मुझे कुछ भी कह दिया, इट इज देयर ओपिनियन। मेरा, दे डिडंट लाइक माई ड्रेस, कहा क्या ड्रेस पहना है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ओके, आर दे जस्टिफाइड, or do they have the right to opine about my dress? Yes. Do they have the right to opine? कर सकते हैं ना? तो उनकी ओपिनियन, एंड किसी को, मुझे व्हाइट ड्रेस अच्छा लगता है, आपको ब्लैक ड्रेस अच्छा लगता है, इट इज ओके, फाइन, उसकी ओपिनियन है। व्हाई शुड आई स्टार्ट हेटिंग माई ड्रेस बिकॉज यू डोंट लाइक इट? तब तो मुझे सब, जब उनके पास जाना चाहिए था ना, सबको लेके जाना चाहिए मेरे ड्रेस को खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे सबकी ओपिनियन चाहिए थी। सिमिलरली वॉट एवर पीपल ओपाइन अबाउट मी, इट इज देयर ओपिनियन, बट एट दैट टाइम हमें क्या करना होता है कि आई शुड बी ऑन द कॉन्ट्ररी, जस्ट लाइक व्हेन वी सी समवन abusing, we, if we love that person, we have a good relationship, we will try to intervene and sideline and उसको अलग करेंगे, आओ forget, and try to console that person, करते हैं। This is called a good relationship with that person. So similarly, someone has abused me. If I really love myself, first of all, I'm very clear, it is their opinion. They have the right to opine whatever they want. और उस समय मुझे और ही अपने साथ मैं प्यार करूंगी, उसको कंसोल करूंगी, न कि उसकी बात को ऑथेंटिकेट करूंगी। यस यस, रियली मैं तो बहुत यूजलेस हूं, क्योंकि उन लोगों ने कह दिया। तो उस समय क्या चाहिए होता है? अपने प्रति प्यार, और ही ज्यादा प्यार, और ही ज्यादा कंसर्न, सो दैट उनकी बातों का असर, मतलब वो उनके ओपिनियन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। एट दैट टाइम, जैसे उसने उसको एब्यूज किया मेरे फ्रेंड को, और मैं देख रही हूं, आई विल गो ऑल द वे, बिकॉज आई नो शी हैज गॉट हर्ट, और टाइम स्पेंड करूंगी। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। सो सिमिलरली, जब मुझे किसी ने कह दिया मुझे मुझसे प्यार है,
मतलब मैं क्या करूंगी, आई ट्राई, मैं अपने आप के साथ बैठूंगी, एंड अगर वुंड हुआ है, आई हील इट. स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ is creating the relationship with yourself. And then we always would like, want to create the relationship with the one who always value me, the one who always respects me, and the one who always loves me. हम चाहते उनके उनके साथ हम कितना अच्छा संबंध, अच्छा लगता है. तो किसी ने कुछ भी सोचा, कहा, किया, उस समय मुझे अपने आप से कितना कितना मैं स्पेंड करती, मैं उस बात को लेट गो करके अपने आप के साथ रहती हूँ. दिस इज कॉल्ड लविंग योर सेल्फ, नोइंग योर वर्थ. नहीं तो वही उस समय के सारे वूंड्स, जो यू आर यूजलेस, ओके, चार लोगों ने बोला यू आर यूजलेस, यू आर दिस, यू हैव नॉट रिस्पेक्टेड मी, यू आर डूइंग दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेल्फ एस्टीम, व्हेन आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, क्या करेंगे हम? ओके, सपोज आई टेक दैट स्टेटमेंट, इन केस देर इज समथिंग टू ट्रांसफॉर्म, उसको हम लेंगे, बट अदरवाइज इट्स योर ओपिनियन, यू आर द राइट. दिस इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम. आई नो माई वर्थ. तो रेडी टू ट्रांसफॉर्म ऑल्सो. सपोज हमारे अपने बच्चे को किसी ने कहा तुम नहीं, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ठीक है कुछ थोड़ी सी गलती है, लोगों की आदत है मैग्नीफाई करने की. हम उसको क्या करेंगे, बच्चा है, फ्रेंड है, उसको लेंगे, उसको बताएंगे प्यार से कि ठीक है, ये ठीक कर दो, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट टाइम वी वी स्पेंडिंग टाइम विद दैट पर्सन is not only the need of the hour, but the real relationship we share with them. क्योंकि उस समय वो बहुत हर्ट है, उसके साथ उसको देना है. अब किसी ने मुझे कुछ कह दिया, क्या हम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? हमको उसके स्टेटमेंट्स का वर्थ है, बट डू वी हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर सेल्फ? कि जैसा उसने बोल दिया वैसे कर दिया. सभी एंजल्स कहाँ चले गए अभी? सब एंजल्स कंसिस्टेंटली इस जर्नी में साथ रहेंगे, दे आर एंजल्स. तो हम क्या करेंगे, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे. दिस इज इन इन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वर्थ. और फिर जब हमने उसको वो रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया ना, बिकॉज सब मेरे अगेंस्ट में, सब मुझे कुछ भी कह रहा हो, लाइक बाहर भी सब अगेंस्ट में है, सब है. सपोज द रिलेशन कपल है, या फादर है, या द चाइल्ड है, one of that family member is very much on his side, we feel 100% सिक्योर. तो चाहे पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरे साथ है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह कुछ भी किसी ने कुछ कह दिया, मुझे साइडलाइन किया, they didn't respect me, but who has to stand for my with me? That one person, and that is me, myself. So we want that person to always be with me. हम वही चाहते हैं कि वो मेरे साथ होना चाहिए. तो अपने आप को, नहीं तो उस समय जो वुंड हो जाता है,
और फिर उसके कारण हम अपने आप, वो दैट हॉरिबल सीन्स, वो वुंड, उसको नॉट ओनली वो होता है, फिर उसको और ही रिपीट करते रहते हैं। उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उन लोग ऐसे करते हैं, उन लोग मेरे साथ ये करते हैं। इसका मतलब मैं अपने आप को वैल्यू नहीं दे रही हूँ, आई एम वैल्यूइंग देयर स्टेटमेंट्स, देयर एक्शंस। एंड व्हेन, सो दिस attitude is decreasing self-worth, increasing self-worth. ओके, उन्होंने कहा मैं ठीक हूं। कब? तो अपने आप को इतना फ्रेंडशिप बना के रखना। एंड व्हेन वी हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड इन आवर लाइफ, कि irrespective whatever things are outside, that friend always stood by me, is always with me, what will happen? We will feel very confident, secured, and we regain the confidence on ourselves, क्योंकि वो मेरे साथ है ना, द वन हु इज वेरी परफेक्ट, और वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है, वेरी पावरफुल है। सो दिस सिमिलरली, अपने साथ खड़े रहना। आई, चलो उन्होंने कुछ भी बोला, कुछ भी कहा, आई नो व्हाट आई एम वर्थ ऑफ, आई एम अ वेरी प्योर सोल। सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग कैन नॉट बी पॉसिबल व्हेन देर इज, मतलब अपने आप को हम जब छोटा समझते, ये तभी पॉसिबल हो जाता है जब, नॉट एज अ बॉडी, अगर आई विल जस्ट फील माई वर्थ, कि एज मच ये बॉडी के अकॉर्डिंग हाउ आई लुक, देयर वुड बी सो मेनी गुड, so many people very much beautiful than me. If I measure my worth as per my education, बहुत लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड है, as per what I possess, वो भी बहुत लोग हैं, तो समवेयर आई फील वेरी सुपीरियर, समवेयर आई फील वेरी इंफीरियर। तो इसलिए अपने वर्थ को, अप मैं कौन हूं, द स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। मैं पावरफुल सोल, विच वी हैव डन, कि वी आर दैट प्योर एनर्जी, मतलब वेरी पावरफुल एंड वेरी सक्सेसफुल। वी आर, वी हैव टू बिकम नो, वी विल बिकम नो। हम पहले थे वो भी नहीं, हम है। इस बात पर 100% कॉन्फिडेंस हो कि वी आर दैट पावरफुल सोल। सो वॉट एवर अदर्स से, ठीक है, देयर ओपिनियन। नाउ सपोज, स्मॉल एक्सरसाइज, हैव वी फाउंड एनीवन, have you found someone in your screen of your mind who has not been your way? ऐसे कोई, किसी कोई आए आपके माइंड में जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है पता चला? अच्छा, अब नाउ, बिकॉज वो उसने ऐसा कह दिया, वो मेरे साथ ऐसा है, अब उस, जितने भी ऐसे लोग हैं, उसको मैं, जो मेरे स्क्रीन पे आए हैं, उनकी अपनी स्टेटमेंट है, whatever they have told about me, हम लोग, when I say I like white dress, is it about you or is it about my liking? What do you feel? Is it about you or is it about my liking?
मेरी लाइकिंग है ना, मुझे व्हाइट ही अच्छे लगते हैं। लाइकवाइज इट कुड बी फॉर ड्रेसेस, थिंग्स, एंड सिमिलरली फॉर पीपल। तो इसलिए किसी के भी कहने से अपने आप की वैल्यू को कम और ज्यादा नहीं करते। अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स में, ओरिजिनल आइडेंटिटी में कॉन्फिडेंट रखना। एंड देयरफॉर you have to base my feelings on the original identity. And when you base your identity on this outside, तो होता क्या है कि 30% अच्छे लग रहे हैं, अच्छा बोलेंगे, 70% शायद अच्छा नहीं भी बोलेंगे। और अगर अच्छा फील भी करते हैं, सपोज यू से, लेकिन मेजोरिटी के ओपिनियन में तो जा सकते हैं ना। मेजोरिटी अगर अच्छा फील भी कर रहे होते हैं ना कभी कभी, तो अंदर अच्छा भी फील करेंगे, लेकिन जेलेसी के कारण फिर भी नहीं बोलेंगे। हैव वी कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ पीपल? नहीं बोलते। सो इट्स सो रिस्की टू बेस माई आइडेंटिटी on what people think about me. So it's always, and that also too, so much fluctuating. तो इसलिए अपनी वर्थ को ऑलवेज पावरफुल रखना है। एंड व्हेन यू हैव सो गुड रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे ही किसी ने कुछ कह दिया, immediately I have to just be with myself, stand for myself. No, I am very powerful soul. I am very successful soul. उन्होंने कह दिया you are useless, but I am very successful soul. अपनी इस सिचुएशन में बल्कि रिस्पेक्ट करना मीन्स यू रियली लव yourself. And when there is so beautiful bonding with myself, I don't need anyone in this world to console me. I don't need anyone in this world कि where I will say कि मुझे बहुत फीलिंग्स को शेयर करना है, क्योंकि I have a very good friend in me. Me myself is a very good friend. This is the power of the spirituality, the spiritual knowledge that I am a pure soul. And so many healings are based on how you feel. What is depression? If you just see, so that businessman had come to us कि प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन because I took some wrong decisions, so the wife, and I could understand the whole family is suffering because of my wrong decision, and I've agreed to it. I understand आपका सुनिए, see where we are, the way we are struggling, and no, she's continuously abusing me, and therefore completely depression. एंड डिप्रेशन की पावरफुल गोलियां ले रहे हैं। क्यों? गलत थे वो, ठीक है, गलती हो गई, कोई एक रॉन्ग डिसीजन लिया उसके कारण, ठीक है, परिवार को सफर करना पड़ा। बट 15 स्टेटमेंट हेवीली was told by the wife, और वो एक बार नहीं, when it comes to the near and dear ones, if they start abusing you, वो पता नहीं पूरे दिन में कितनी बार होता रहता है। ऑफिस में तो फिर भी कभी कभी हमको मिलता है, घरों में तो अब ऐसे करके एक दिन में, एक एक घंटे में 15 स्टेटमेंट, 100 times in one day, and this is happening since 1-2 years.
बिकॉज द डिसीजन वॉज वेरी रॉन्ग देयर विच इज बिंग। तो एक तो बाहर की सफरिंग चल रही है और एक ये इनसाइड। अब उन्होंने जो कह दिया, अब उसको रियल, अपनी रियल बार बार रिपीट करना है। यस आई वॉज एट मिस्टेक, यस आई वॉज एट मिस्टेक, यस आई वॉज एट मिस्टेक। अब उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट आता है, therefore आई एम नो यूज, therefore माई आई कैनॉट डिसाइड। मेरे डिसीजंस रॉन्ग ही होते हैं, मैं तो सचमुच कुछ काम का नहीं हूं। तो चार उसके गलत बहुत बार, वो मैंने ग्रहण किए, और फिर मैं अपने स्टेटमेंट को सोचती रहती हूँ, यस मैं तो ऐसी हूँ। क्या हो जाएगा? जैसे एक एक को थप्पड़ मारो और उसके बाद उस जगह पे और थप्पड़ मारते जाओ, मारते जाओ। कितना वुंडेड है, क्या उसको ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? एंड देयरफॉर द साइकेट्रिस्ट आर अर्निंग बिकॉज ऑफ माय लो सेल्फ वर्थ। उनकी अच्छी कमाई हो रही है, डिप्रेशन की गोलियां चल रही है, और इतनी डिपेंडेंट है उस गोलियों से कि वो बता रहे थे कि अगर मैं एक दिन गोली नहीं लूं तो उसको कोई कंट्रोल ही नहीं यहाँ। और फिर पता नहीं, देर इज सॉर्ट ऑफ एक वाइल्ड फायर हो जाता है, और जस्ट आई जस्ट कैन नॉट स्टे विदाउट द गोली। सो दिस इज कॉल्ड, फर्स्ट द वाइफ वॉज रूलिंग हिम, एंड देन बिकॉज ही कंप्लीटली नाउ लेफ्ट हिज ओन कंट्रोल, अब गोलियां रूल कर रही है, और अब तो पूरा कंप्लीटली मशीन डिपेंडेंट, मेडिसिन डिपेंडेंट। इज इट ट्रू? क्यों किया? एक गलती हुई थी, ठीक है, उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी स्टेक में है, ठीक है, बट स्टिल ये गोलियां तो उसकी कंट्रोल नहीं करे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ वर्थ। तो उस समय मुझे क्या चाहिए? आई एम वेरी प्योर सोल, पावरफुल सोल। मुझे तो अपने, अब जो इतना समय का वोंड है, 3 साल 2 साल हम इसके ऊपर चलते रहते, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते, तब तक तो इतना ज्यादा वोंड हो जाता है, अब तो कुछ हल ही नहीं हो सकता। बट फिर भी बहुत सिंपल है, क्या करना है? अपनी वर्थ को फील करना। नो, आई एम प्योर सोल, आई कैन डू इट, एंड आई विल डू इट। आई हैव टू जस्ट बी वेरी गुड विथ योर सेल्फ, इंक्रीज योर सेल्फ। जब तक हम अपने आप को ये प्योर एनर्जी, नॉट विद दिस आउटसाइड फीलिंग, लिटरली विजुअलाइज करें, मैं पावरफुल सोल हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, फॉरगेट दिस आउटर कवरिंग। इसने गल ये ऊपर नीचे है, मैं सोल इज परफेक्ट। ठीक है, मैं सोल ने कुछ रॉन्ग डिसीजन दिया, फाइन, आई स्टिल हैव टू बी विथ माई सेल्फ। अगर बच्चे ने कोई रॉन्ग डिसीजन कर लिया, तो क्या हम उसको भगा सेपरेट कर देते हैं? एज अ वेल विशर, एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, वी ट्राई टू बी मोर विद दैट पर्सन। कभी कोई मुझे कुछ भी कहे उस समय, और अपने आप को साथ रहना, अपनी इम्पोर्टेंस को बार बार रिपीट करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। इफ देयरफॉर, सभी कहते हैं ना हमको योग करना है, मेडिटेशन करना है, बट इफ दिस कॉन्शियसनेस is not removed, if I'm not able to increase my self-worth, I cannot meditate. Raj Yoga meditation means being 100% confident on what you are. So therefore, in this meditation, we learn that I am a I am a very powerful soul. I love myself. Life would be very difficult
if we have to stay with people who don't love us. Just imagine what the life would be, because I have to stay with the people who don't love me. So कुछ भी हो जाए, अपने वर्थ को ऑलवेज कीप इट इन द स्पिरिचुअल फीलिंग. मैं बहुत पावरफुल हूँ. आई कैन डू इट. आई विल डू इट बिकॉज आई एम अ प्योर सोल. बी ऑलवेज विथ योर साइड. एंड अब इस फीलिंग को बार बार रिपीट करना. सो व्हेन so just removing the outside layers of the self and पूरे बाहर की layers को remove करते हैं. The layer of body, name, education, religion. Just try to remove this. इन सब को remove करें. और बची कौन? मैं pure energy. This visualizing ourself as a point of light in the center of the forehead. And then being ourself कि मैं powerful soul हूँ. I am. I will be नहीं. I am peaceful. I am loveful. I am pure. I am a powerful soul. I have all this pass. This is the first step of meditation. Meditation is not just remembering God. Meditation is regaining our original strength. Meditation is feeling ourselves important, feeling loving myself. Meditation is spending time with yourself. Possible? You all are interested in doing meditation, right? But first, I have to be completely focused on this chapter. तो अपने आप को ये समझे और फिर अपने feelings always रखे. I am a powerful soul. This is the homework for the whole. Possible है? So we'll just for some time situate ourselves in this feeling. I am a pure soul, powerful soul. कोई कुछ भी कह दे, I understand, I will change, but still I have 100% love for myself. प्यार से अपने साथ बैठे, रिस्पेक्ट से अपने साथ बैठते हैं, अपने आप की वैल्यू करते हैं. I am pure energy, a powerful energy. चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं है, but I am a pure, powerful soul. I have values in my life. मेरी सच्चाई मेरा ट्रेजर है. मेरी प्योरिटी मेरी ब्यूटी है. मेरा कॉन्फिडेंस मेरी एनर्जी. And now when I'm so powerful, it becomes easy for me to connect with the Supreme. I am a special soul because I'm so beautiful. मेरा ज्ञान, मेरा एजुकेशन, मेरे पास ब्लेसिंग्स का ट्रेजर मेरा धन है. सो आई एम वेरी वेल्दी बिकॉज मेरे पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं. आई एम वेरी एजुकेटेड बिकॉज मेरे पास स्पिरिचुअल नॉलेज है. एंड आई एम वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज मेरे पास कॉन्फिडेंस है. I am this pure soul.
love yourself, respect yourself, be a friend to yourself. मैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मैं पावरफुल सोल। ओम शांति। तो ये होमवर्क करना है, करेंगे सभी, सब करेंगे। अपने आप को बहुत हाई समझो, आपकी सारी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, एंड वो शक्ति आपके कर्म को सक्सेसफुल बनाती है। इररिस्पेक्टिव, बहुतों ने एलिगेशंस लगाए, बट इंक्रीज योर पॉसिबल। यस पॉसिबल। I should see, very good. I should see all the hands like that for 1 week. Who will do it? Yes. आप ट्राई करके देखो। एक स्मॉल 1 मिनट 10 सेकेंड्स का इंसिडेंट बताती हूँ। बहुत बड़ी चेयरमैन की मैनेजिंग डायरेक्टर का इंटरव्यू था, एंड ही वाज नॉट नोइंग मच। तो फोन करके पूछा बहनों को कि क्या करना है। सो वी टोल्ड देम कि यू जस्ट थिंक वेरी पावरफुल, कि आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस व्हाट आई वांट, और आई एम मास्टर सर्वशक्तिवान। वो गया उस नशे से, बैठा कि बस मैं पूरे दिन सुबह से प्रैक्टिस किया, आई एम वेरी पावरफुल सोल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वो 3 इंटरव्यूअर थे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के थे। फिर उन्होंने पूरा देखा, बोला आप वाइट ड्रेस क्यों पहनते हो? उसने रीजन बताया। फिर फिर बोला आपके ये बैच है वो क्या है? वो बताया। करते कराते आधा घंटा हो गया। बोला ओके, अच्छा आंसर्स लगे उनको। गए, अगले दिन आ गया, लेटर आ गया, यू आर सिलेक्टेड फॉर द एमडी पोस्ट। तो दिस इज व्हाट इज द वर्थ वी क्रिएट अबाउट आवर सेल्फ, विच मेक्स इम्पोर्टेंस इन अदर्स माइंड। ठीक है। हम शांति। So we'll do this practice, right? Thank you for the session today, Didi. And thank you to everybody else for attending. Let us complete the homework and meet the next week. Thank you. Have a nice day and Om Shanti.